سب سے پہلے مانیور روشن لال جی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوامی دیانند سرسوتی نے جو اپنی جیونی میں لکھے ستار پرکاش میں، اس میں شری کرشن جی کو یوگی راج شری کرشن کا ہے، جبکہ کہ ان کی کوئی بیویاں نہیں تھی، ایک کے علاوہ. ان کا نام تھا رکمنی، اور ان سے ہی بچہ پیدا ہوا تھا پدم. انہوں نے ایک الزام لگایا آریہ جاتی پہ کہ شری کرشن جی کی 11,000 پتنیاں تھیں. کرپا آپ سمادھان کریں اور اس کا جواب آپ پن لیں ان سے کہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. جواب کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. ادھر سوال مجھ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ. شنکراچاریہ اگر چاہتے میں جواب کے بعد اضافہ کرنا چاہتے ہیں میں انہیں دے دوں گا انشاءاللہ. میں بھی طالب علم ہوں الحمدللہ، صرف قرآن کا نہیں، وید کا بھی، مہابھارت، رامائن. انشاءاللہ پہلے آپ کا سوال دوں گا انشاءاللہ، اور باقی جو شنکراچاریہ نے کہا اس کا بھی جواب دوں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ جو میں نے الزام لگایا کرشن کے 16,000 سے زیادہ بیوی تھی، وہ الزام نے وہ آپ کے مہابھارت میں لکھا ہوا ہے. اور کرشن کی ایک بیوی نہیں 8 بیویاں تھے، 8 بیویاں تھے، اس میں سے رکمنی تھی، 8 بیویاں تھی. اس کے بعد 16,100 جب جنگ کے حالت کے اندر انہوں نے 16,100 سے شادی کی. یہ لکھا ہے مہابھارت کے اندر انوشاسن پرو میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں جب آپ تقریر کرتے ہیں، جواب دیتے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے کتاب سے. میں ہی کہتا ہوں یا کوئی سوامی کہتے ہیں، شنکراچاریہ کہتے ہیں، اس کی ویلیو 0 ہے. میں کچھ کہتا ہوں اسلام میں، اس کی ویلیو 0 ہے. میں حوالہ دوں گا قرآن اور صحیح حدیث کا. تو میری تقریر میں جتنی بھی میں نے بات اسلام کے متعلق کی، اس کا حوالہ دی. چیپٹر نمبر سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 1، یا صحیح بخاری والیوم نمبر 4 حدیث 46. تو یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں یہ مہابھارت میں لکھا ہوا ہے انوشاسن پرو میں کہ شری کرشن نے 16,100 ایک ساتھ میں 8 پہلے تھے، تو وہ 8 کو جڑ کے کل ملا کے ہوتے ہیں 16,108. تو 16,100 ساتھ میں انہوں نے کی. وہ جنگ کے حالت میں جب کئی لوگ مارے گئے تو اس حالات میں تو یہ الزام نہیں، حقیقت ہے. اگر آپ سمجھتے یہ غلط ہے تو آپ کو مہابھارت میں نہیں ماننا چاہیے. اور جو لوگ نے ابھی تقریر کی، میں تقریر کے بعد ماشاءاللہ جب شنکراچاریہ نے کہا اور شروع کیا، انہوں نے پوری تقریر میں ایک عربی کی آیت کی تلاوت کی، آیت یا عربی بولیں کلمے کی تلاوت کی، اور ایک سنسکرت کی تلاوت کی. اور کئی لوگ نے جب انہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب انہوں نے کہا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت لوگ نے یہ سمجھا ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں شنکراچاریہ وہ مسلمانوں کو بہلانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے. ان کی کیا نیت تھی اللہ عالم، میں نہیں جانتا، میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا. لیکن کیونکہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میرے دماغ میں فوراً جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ وید کا نچوڑ ہے، پرانا کا نچوڑ ہے، جو وہ کہہ رہے تھے، فوراً میرے دماغ میں وہ شلوکا یاد آنے لگے. اور شنکراچاریہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ان کی نیت کیا تھی اللہ عالم، لیکن وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، انہوں نے صحیح کہا کہ ہندو مذہب، یہ نام جو ہندو ہے یہ برٹشرز نے دیا ہے، انگریزوں نے دیا. یہ ہندو لفظ جو ہے انگریزوں نے دیا ہے، صحیح نام ہونا چاہیے ویدنتی سے سناتن دھرم. یہ ہندو جو نام ہے یہ ہندوازم انگریزوں نے دیا. ہندو نام سب سے پہلے پرشین لوگ نے جب آئے تھے ہمالیہ کے ذریعے، اور جو عرب لوگ آئے تھے ہندوستان میں، انہوں نے نام ہندو دیا. اور آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں پڑھیں گے والیوم نمبر 20 ریفرنس نمبر 581، اس میں کہا گیا ہے کہ ہندوازم از اے گروپ آف بلیفس فار پیپل لیونگ ان انڈیا. تو ہندوازم جو لفظ ہے یہ انگریزوں نے دیا ہے، صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم. اور بالکل صحیح ہے کہ سب سے اونچی کتاب ہندوازم میں وید اور اپانشد پرانا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیہ اپنشد ادھیائے 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1، اس میں لکھا گیا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے. شتا شتار اپنشد میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 6 شلوک نمبر 9 میں ناچس کشج جنیتا نچدیپا. یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس بھگوان کا کوئی رب نہیں ہے، نہ کوئی والدین ہے، اس کا نہ کوئی پالنے والا ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے. آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے شتا شتار اپنشد میں ادھیائے 4 شلوک نمبر 19 میں نہ تस्य پرتما استھی، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور سارے کتابوں میں سے جو سب سے اوپر کتاب ہے جس طرح شنکراچاریہ نے کہا وہ ہے وید. اور 4 وید ہے، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید. یجروید میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 32 چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے نہ تस्य پرتما استھی، اس کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی تصویر ہے. اس بھگوان کا نہ عکس ہے نہ تصویر ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے یجروید میں ادھیائے 40 شلوک نمبر 9 میں اندھاتم پروشنتی یا اسموتی مپاستے. اندھاتم اندھکار، پروشنتی مطلب اندر جانا. وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے ہیں. اسمبوتی مطلب قدرتی چیزیں، ہوا، آگ، پانی. جو لوگ قدرتی چیزیں کی پوجا کرتے ہیں وہ اندھکار میں جا رہے ہیں. اور آگے شلوکا کہتا ہے کہ وہ لوگ اور گہرے اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں. سمبوتی مطلب بنائی ہوئی چیزیں، مطلب ٹیبل، چیئر، گاڑی، بت. یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی اگر پوجا کر رہے ہیں تو اور اندھکار میں جا رہے ہیں. اور آپ پڑھیں گے رگ وید، چاروں ویدوں سے سب سے اونچا وید ہے رگ وید. رگ وید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 1 بک نمبر 1 کتاب نمبر 1 ہم نمبر 164 شلوکا نمبر 46 ایکم ست
विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है, और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नेहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पार्ट कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अभी दूसरे पार्ट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दीगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्चा आएगा, मलेच्चा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा, और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक, उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे, उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, जिसका नाम है कल की पुराना। और कल की पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 एंड 15, जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल की पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल की, उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु व्यास। सुमति के मानिए अमन, अमन करने वाली, और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले, और विष्णु व्यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल की पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूं मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के निचोड़े का ना कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरखास्त करता हूं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ना ही सर कटाने की इस्लाम के, ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफी चीज पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया उनके वेद के अंदर कल की पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे। वो जिक्र है कल की के बारे में, जो जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है। और हर मुसलमान ये जानता है कि उसका फर्ज है कि वो इस्लाम की दावत गैरों तक पहुंचाए। और इस तकरीर के शुरू में मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, जिसके मानी है कि सब लोगों को बुलाओ अल्लाह की राह की तरफ हिकमत के साथ और अच्छी बातों के साथ, और लोगों से बहस करो हुस्न के साथ और अच्छे तरीके कार के साथ। लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके में सफलता और मिलती है, कुछ में कम सफलता मिलती है। सबसे आम तरीका जो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए गैर मुस्लिम को, वो है कि इस्लाम के बारे में सैकड़ों अच्छी बातें करते हैं। ये तरीका भी एक तरीका है जो सही है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई गैर मुस्लिम से आप इस्लाम के बारे में सैकड़ों अच्छी बातें करते हैं, और मान लो मिसाल के तौर पे
कि वो उन बातों को कबूल करता है, फिर भी उस गैर मुस्लिम के दिमाग में ये सवाल रहेगा और वो शायद कहेगा ठीक है इस्लाम में अच्छी बातें हैं, लेकिन आप वही मुस्लिम हैं, वही मुसलमान हैं जो फंडामेंटलिस्ट है, जो बुनियाद परस्त है, जो टेररिस्ट है। आप वही मुसलमान हैं जो एक से ज्यादा शादी करता है, एक से ज्यादा बीवी रखता है। आप वही मुसलमान हैं जिसने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया। ये चंद बातें जो उसके दिमाग में हैं, वो उसे इस्लाम की अच्छाइयां कबूल करने से रोकती है। इसीलिए जब भी मैं कोई भी गैर मुस्लिम से मिलता हूं, मैं पहला सवाल उससे करता हूं कि आपको इस्लाम में क्या गलत लगता है, आपके पास इस्लाम के खिलाफ क्या चीजें, और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि उसके इल्म के हिसाब से, भले उसे इल्म मीडिया के जरिए मिला या किताबों के जरिए मिला, सही या गलत, जो भी इल्म उस गैर मुस्लिम के पास है, मैं उससे पहला सवाल पूछता हूं आपको इस्लाम से क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के मुतालिक क्या चीज आपको गलत लगती है, और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि वो इस्लाम के खिलाफ भी बात कर सकता है, कुरान के खिलाफ भी बात कर सकता है। और जब वो मुतमईन हो जाता है तो वो गैर मुस्लिम 2 या 3 सवालात इस्लाम के मुतालिक करता है। और मेरे 10 साल से ज्यादा तजुर्बे में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लगभग आम गैर मुस्लिम के दिमाग में 20 सवालात इस्लाम के मुतालिक है। और ये सवालात जो हैं, कभी भी आप गैर मुस्लिम से पूछेंगे कि आपको इस्लाम के बारे में क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के बारे में क्या चीज पसंद नहीं है, तो वो 2 या 3 या 4 सवालात करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सवालात, ये 20 सवालातों में से ही होता है। 90% ये 3 या 4 सवाल जो करेंगे गैर मुस्लिम, ये 20 सवालात के अंदर से ही होता है। ये कॉमन आम 20 सवालात जो गैर मुस्लिम के जहन में कैसे आए, जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात आते हैं। और आज की इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, रेडियो स्टेशन हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल हो, ये सब इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां फैलाते हैं। और कुछ मीडिया खुसूसन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात उनके जहन में आते हैं। आज की तारीख में जो 20 सवालात आम गैर मुस्लिम के दिमाग में हैं, 10-20 साल पहले ये सवालात कुछ और थे। 20 साल बाद शायद ये सवालात फिर बदलेंगे। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात गैर मुस्लिम के दिमाग में आते हैं। और ये 20 सवालात सारे दुनिया में, सारे मुमालिक में वही है। कुछ 1 या 2 सवालात डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी, माशरे के हिसाब से, उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से शायद 1 या 2 सवालात और होंगे। लेकिन ये बाकी 20 सवालात सारे दुनिया के मुमालिक, भले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो या इंडिया हो, ये सवालात सेम हैं, वही हैं। जितना वक्त मुझे दिया गया है उस वक्त में शायद मुमकिन नहीं कि मैं सारे 20 सवाल का जवाब दूं। कोशिश करूंगा कि कम से कम आधे सवालात का जवाब दूं। आज की तारीख में अगर हम ये सारे सवालात का जवाब हिकमत से कुरान और सही हदीस की रोशनी में दे, भले गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं करे, लेकिन कम से कम उनके दिल में जो नफरत है वो कम से कम दूर कर सकते हैं। और हमारा फर्ज है कि गलत फहमियां हम गैर मुस्लिम के जहन से दूर करें। आज की तारीख में सबसे पहला नंबर 1 मिसकंसेप्शन जो है आज की तारीख में, खुसूसन 11 सितंबर के बाद, वो है कि मुसलमान एक फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान एक टेररिस्ट है। इसकी मानी कि मुसलमान एक बुनियाद परस्त है, एक दहशत गर्द है। और आमतौर पे आप देखेंगे टेलीविजन चैनल्स में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे, मुसलमान को हमेशा कहा गया है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त के मानी क्या होती है? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो शिद्दत से बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर एक साइंटिस्ट को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है, वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स
का बुनियाद परस्त न हो तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। इसीलिए हर बुनियाद परस्त, हर फंडामेंटलिस्ट को कहना कि वो बुरा है या अच्छा है, ये सही नहीं। हमें पहले यह जानना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। इन विच फील्ड इज ही अ फंडामेंटलिस्ट। मिसाल के तौर पे अगर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा नहीं है, वो नुकसानदार है, तो वो बुनियाद परस्त शख्स अच्छा शख्स नहीं है। दूसरी ओर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है इंसान की जिंदगी को बचाना, और वो हजारों इंसान की जिंदगी को बचाता है। वो एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, लेकिन ये बुनियाद परस्त डॉक्टर माशरे के लिए अच्छा है, वो एक अच्छा शख्स है। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि किस मैदान में वो शख्स बुनियाद परस्त है, और उस मैदान को जानने के बाद हमें यह फैसला करना चाहिए कि वो बुनियाद परस्त सही है या गलत है। जहां तक कि मेरा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुस्लिम हूं। आई एम प्राउड टू बी अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। मुझे गर्व है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बुनियादी बातों को जानता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन बुनियादी बातों पर अमल करता हूं। इसीलिए मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है कि इस्लाम की एक भी बुनियादी बात वो ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि उस शख्स के इल्म में कमी हो, उसे उसकी हिकमत नहीं पता होंगी, लेकिन अगर हम लॉजिकली उसकी वजह और हिकमत बताएंगे तो दुनिया में एक भी शख्स नहीं है जो एक इस्लाम की बुनियादी बात, सिर्फ एक भी साबित कर सके कि वो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि एक आध इंसान जो माशरे के खिलाफ है उसके लिए वो बुनियादी बात शायद मुफीद न हो, लेकिन आम इंसानियत के लिए एक भी इस्लाम की बुनियादी बात इंसानियत के खिलाफ नहीं है। और ये लफ्ज जो फंडामेंटलिज्म है, बुनियाद परस्ती, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी के हवाले से ये हमें पता चलता है कि ये लफ्ज बुनियाद परस्ती, फंडामेंटलिज्म, सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के लिए जो अमेरिका में थे। अमेरिकन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन के लिए 20वीं सदी के शुरुआत में ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ने कहा कि जो बाइबल है, ये सारा बाइबल अल्लाह का कलाम है। पहले क्रिश्चियंस ईसाई ये समझते थे कि बाइबल का पैगाम अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका में इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी उनने कहा कि सिर्फ बाइबल का पैगाम ही खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा का कलाम नहीं है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज नहीं है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसमें फंडामेंटलिस्ट का डेफिनेशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडहियर्स टू द एंशिएंट डॉक्ट्राइन ऑफ एनी रिलीजन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहबी किताब पर अमल करता है। लेकिन अगर आप रिवाइज्ड एडिशन पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें डेफिनेशन में जरा तब्दीली है। अगर आप नया एडिशन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की किताब पे अमल करता है, खुसूसन इस्लाम। अभी नई एडिशन में है बुनियाद परस्त मतलब जो खुसूसन इस्लाम की मजहबी किताब पे अमल करता है, मतलब मुस्लिम। अगर आप ये वर्ड सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, फौरन आपके जहन में आना चाहिए वो है मुस्लिम। हालांकि ये पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई लोग के लिए, आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम के लिए। जब भी आप ये सुनेंगे लफ्ज फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, आपके जहन में आएगा मुस्लिम, कि वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। मैं कहता हूं यार मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, लेकिन पहले हम ये समझ ले कि दहशतगर्द के मानी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेररिस्ट? दहशतगर्द मतलब वो इंसान जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। मिसाल के तौर पे, जब भी एक चोर कोई पुलिस को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होती है।
तो उस चोर के लिए वो पुलिस दहशतगर्द है। इसी तरीके से हर मुसलमान का फर्ज है कि जब भी कोई चोर उसे देखे, जब भी कोई बलात्कार करने वाला उसे देखे, जब भी कोई लफंगा उसे देखे, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। और कुरान क्या कहते हैं, जो लोग माशरे के खिलाफ है, जो लोग माशरे के खिलाफ है, एंटी सोशल एलिमेंट, जब भी कोई मुस्लिम को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम उसके दिल में दहशत पैदा करें। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आमतौर पे टेररिस्ट, दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस सिलसिले में कोई भी मुस्लिम कभी भी कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। यह हमारे लिए हराम है। हमें खुसूसन उन लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए जो माशरे के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ हैं और जो लोग इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कई वक्त एक शख्स जो कोई काम करता है उसको दो अलग लेबल दिए जाते हैं, 2 डिफरेंट लेबल्स, 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस देश को आजादी मिलने के पहले हमारा इस देश हिंदुस्तान, ब्रिटिशर्स इस हिंदुस्तान, इस मुल्क पे हुकूमत करते थे। उस वक्त तकरीबन 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स इन देशभक्त लोगों को कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं। द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, मेनी ऑफ देम वर कॉल्ड एज टेररिस्ट। कई हिंदुस्तानी जो इस देश के आजादी के लिए झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको कहते थे ये दहशतगर्द हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी इन लोगों को कहता था देशभक्त या पेट्रियट, जो देश के आजादी के लिए लड़ रहा है। वही इंसान, वही काम, लेकिन 2 अलग लेबल, 2 डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स की बात मानते हैं कि उनको हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक था, तो हम बेशक इन लोगों को कहेंगे कि वो दहशतगर्द थे। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी की बात मानते हैं कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए आए थे, उनको इस देश पे हुक्म करने का कोई हक नहीं, तो हम ये तस्लीम करेंगे कि ये लोग जो देश के आजादी के लिए झगड़ रहे थे वो सही में देशभक्त थे और दहशतगर्द नहीं थे। वही इंसान, वही काम, लेकिन 2 अलग लेबल, 2 अलग लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमारा फर्ज है कि हम ये जान ले कि किस वजह से वो जिद्दोजहद कर रहा है, वो किस वजह के लिए झगड़ रहा है, ये हमारा फर्ज है। उसके बाद हमें लक़ब देना चाहिए। और ये लक़ब आमतौर पे कॉमन है। मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के पहले सफेद लोग उस पर हुकूमत कर रहे थे, व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट। ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट कहती थी, टेररिस्ट, दहशतगर्द। और ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, सफेद लोग की हुकूमत, उन्हें 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर चुकी थी। लेकिन आम साउथ अफ्रीकन उन्हें कहते थे कि वो एक अच्छा इंसान है, उनके लिए एक हीरो था। सेम आदमी, वही काम, लेकिन 2 डिफरेंट लेबल्स, 2 अलग लक़ब। और अभी चंद साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। वही इंसान जिसको पहले लोग कहते थे कि दहशतगर्द है, कुछ साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। सबसे ऊंचा अवार्ड अमन के लिए मिलता है नेल्सन मंडेला को। आप देखेंगे वही शख्स, वही काम, लेकिन 2 डिफरेंट लेबल्स। इसीलिए लेबल देने के पहले हमें ये जांचना चाहिए कि किस काम के लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। दूसरी गलतफहमी जो इस्लाम के मुतालिक है वो है लफ्ज जिहाद में। और जिहाद की गलतफहमी सिर्फ गैर मुस्लिम के दरमियान नहीं, बहुत से मुसलमान भी जिहाद के मानी नहीं जानते। आम इंसान ये समझता है, बोले मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो ये समझता है कि कोई भी मुसलमान अगर झगड़ रहा है, जंग कर रहा है, कोई भी वजह से, भले वो जाती वजह हो, माल के लिए हो या कोई जमीन के लिए हो, वो समझता है कि वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग कर रहा है कोई भी वजह से, भले माल के लिए हो, नाम के लिए हो या जगह के लिए, वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है। जिहाद एक अरबी लफ्ज है जो आता है जहादा से, जिसके मानी टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। उर्दू में हम कहते हैं जिद्दोजहद, जिद्दोजहद करना। और शरीयत के हिसाब से कोई भी शख्स जो माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। मिसाल के तौर पे कोई अगर जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई मैदान जंग में अपनी जान की हिफाजत कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद का सही मानी जो है वो सिर्फ जिद्दोजहद है और उसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक तालिब इल्म एग्जामिनेशन
पास करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे अरबी में कहेंगे कि वो जिहाद कर रहा है। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। अगर वो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहेंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह। और कई लोग जब जिहाद का तर्जुमा करते हैं अंग्रेजी में, उसका तर्जुमा करते हैं होली वॉर, पाक जंग, और ये बिल्कुल गलत तर्जुमा है, क्योंकि होली वॉर अरबी में है हर्ब मुकद्दसा, और ये लफ्ज हर्ब मुकद्दसा कहीं भी कुरान में, कहीं भी हदीस में नहीं आता। ये लफ्ज अंग्रेजी का जो है होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जो ईसाई लोग थे जो तलवार के बल पर अपना दीन फैला रहे थे, उसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था एज होली वॉर। और अफसोस की बात है कि ना ही सिर्फ गैर मुस्लिम बट कई मुस्लिम स्कॉलर्स, इन्वर्ट कॉमर्स, अपने आप को जो आलिम कहते हैं इन्वर्ट कॉमर्स, वो भी जिहाद का तर्जुमा होली वॉर करते, जो बिल्कुल गलत है। जिहाद का तर्जुमा है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। और अक्सर जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं वो इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम के खिलाफ कई बातें करते हैं। और सबसे आम कुरान की आयत जो इस मौजू पे इस्लाम के खिलाफ लिखने वाले इस्तेमाल करते हैं वो है सूरह तौबा की आयत, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। और इस आयत का इस्तेमाल हमारे देश के अरुण शूरी, आपने नाम सुना है अरुण शूरी, उन्होंने किताब लिखा वर्ल्ड ऑफ फतवास, वर्ल्ड ऑफ फतवास, उसमें कोट करते हैं कुरान मजीद की आयत सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, और उसका तर्जुमा करते हैं कि आप जब भी कोई काफिर को पाएंगे, और उसके जहन में है काफिर मतलब हिंदू, काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। और अगर आप कुरान शरीफ खोलेंगे, कुरान मजीद खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसका ये तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये आयत को बीच में से उठा के कोट कर दिया है, आयत को बीच में से उठा के कोट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, लेकिन पूरी आयत है जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो गलत है। तो सिर्फ अगर मैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा लिखूंगा और बोलूंगा कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है तो ये गलत है। कुरान में लिखा है नमाज मत पढ़ो, नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो, अगर मैं बोलूंगा कुरान में लिखा नमाज मत पढ़ो तो भाई सही है, कुरान खोलेंगे तो लिखा है नमाज मत पढ़ो, ये पूरी आयत है नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। तो इस तरीके से ये आयत को उठाया गया है कुरान मजीद से, और उसका तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन सही मानी जानने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को जानना जरूरी है। पस मंजर कहते कॉन्टेक्स्ट को ना, मेरी उर्दू जरा ठीक नहीं है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। अगर आप उसकी कुछ चंद आयत पढ़ेंगे, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से 4 आप पढ़ेंगे तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि एक सुलह थी, एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकों के बीच, और एक तरफा मक्का के मुशरिकों ने इस अमन को, पीस ट्रीटी को तोड़ दिया। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें तंबीह देते हैं कि आपको 4 महीने का वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग, 4 महीने का वक्त है आपको सुधारने के लिए वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मुसलमानों से कि आप डरो मत, जंग के मैदान में आप जिद्दोजहद करो, जिहाद करो, डरो मत। और अगर आप दुश्मन को पाएंगे, यहाँ लफ्ज जो काफिर है जो इस्लाम को नहीं मानता है, इस कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन, जब आप दुश्मन को पाएंगे मैदान जंग में आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो आम तौर पे कोई भी आर्मी जनरल, अगर अमेरिका वियतनाम से झगड़ा कर रही थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मिलिट्री का हेड है वो अमेरिकन सोल्जर से कहता है कि मैदान जंग में आप जब वियतनामीज को पाएंगे उनका कत्ल करो, अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करूंगा लोग को गलतफहमी होंगी। इन कॉन्टेक्स्ट के मैदान जंग में दुश्मन जब हमला करने आते हैं, आपको कत्ल करने आते हैं, डरो मत, उनका कत्ल करो, ये आम आदमी भी कहेगा तो क्या बड़ी बात है। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैदान जंग में कह रहे हैं कि जब ये दुश्मन, जब ये काफिर, काफिर का मतलब जो इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, फिर चाहे कोई भी हो, काफिर मतलब जो इस्लाम को झुठलाता है, वो कोई भी शख्स हो सकता है, हिंदू होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो इस तरीके से लोग को भड़काते हैं। तो ये आप जानेंगे कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैदान जंग में जब अमन को तोड़ा और जब झगड़ने आते हैं तो आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो क्या नई बात है, कोई भी आर्मी जनरल यही कहेगा। और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में आयत नंबर 5 से आयत नंबर 7 पे जम करते हैं। क्यों? क्योंकि आयत नंबर 6 में उसका जवाब है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर ये काफिर, ये मुशरिक, इफ दे सीक असाइलम, अगर अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ो मत, टेक देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, उनको ऐसी जगह लेके जाइए
جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر کوئی مشرک امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو, ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں, آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی اور قتال کی جو قرآن مجید میں ہے, اس کے بعد اکثر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کرو اور حفاظت سے ان کو چھوڑو.